Today, in the subject of the manufacturing technology, we will give lecture and discuss on the unit first. In the case of the unit first, the syllabus for the unit first is get completed, and the only remained is the mold design. Mold design today we are discussing, and the syllabus of the unit first will be get completed. Mold design, molding parts, mold, making a mold or cavity for the हेलो casting. हाँ बोलिए। सर, आज एग्जाम है बच्चों का 2 बजे से। अच्छा, यूनिवर्सिटी एग्जाम है। हाँ जी। तो हमारे पास तो कोई खबर आई नहीं है, तो क्या करें? देख लो सर आप। नहीं, लेक्चर तो ले ही लेते हैं, क्योंकि वो तो रिकॉर्डिंग मांगता है, तो लेक्चर तो ले ही लेते हैं। जो बच्चे आते हैं ओके सर। ठीक है, नहीं तो फिर बात करेंगे बाद में, है ना। ठीक है 2 बजे सर। से एग्जाम मेरी है। तो अटेंडेंस लगा देना सर। 2 बजे से है। हाँ जी। अच्छा, नहीं ठीक है, कोई नहीं, जो है मैं लेक्चर तो ले ही लेता हूँ। और फिर आपका क्या नाम है? हिमांशु। हाँ, हिमांशु जी, ठीक है ना। हिमांशु पुंडीर नहीं। नहीं, 17, रोल नंबर 17। अच्छा, हिमांशु 17, ठीक है ठीक है। हाँ जी। हाँ ठीक है ना। तो ठीक। एग्जाम है तो ठीक है, जो बच्चे आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो कोई नहीं, है ना। तो ठीक है। लेक्चर तो मैं आपको ले लेता हूँ। तो टुडे इज द मोल्ड डिजाइन में क्या क्या जरूरी है उसके बारे में स्टडी करेंगे। मोल्ड डिजाइन, molding parts refer to those in the direct contact with the plastic to form the shape of the plastic parts, wherein those constituting the contour of the plastic parts are called cavities and constituting the internal shape of the plastic parts are called cores, है ना। जो पार्ट आपको कॉन्टूर पार्ट्स, वो जो आपका बनता है, उसको कैविटी बोलते हैं, और वो कैविटी का ही आपको डिजाइन है ना। और इंटरनल शेप को जो यूज करता है वो कोर कहलाता है। सिंस द कैविटी एंड कोर डायरेक्टली कंटैक्ट द प्लास्टिक्स ऑफ द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर with rub with the plastic parts when protruding, it is the thus required they are provided with the sufficient intensity, rigidity, hardness, abrasion resistance, corrosion resistance as well as enough surface roughness, है ना। मोल्ड में आपको सफिशिएंट इंटेंसिटी होना चाहिए, रिजिडिटी होना चाहिए, हार्डनेस होना चाहिए, एब्रेशन रेसिस्टेंट होना चाहिए। ये सारे जो है मोल्ड में आपको होना चाहिए। तो स्ट्रक्चरल डिजाइन इंटीग्रल कैविटी का किस तरह होगा? ये कैविटी है, कैविटी बनाया हुआ है, इसी का डिजाइन को इंटीग्रल कैविटी कहते हैं। Integral cavity directly cut cavity in the die set plate as indicated in the figure. The advantage thereof of that the processing cost is relatively low. Yet the molding board material for making the die set is usually common medium carbon steel, which is short in service life, is used as the cavity parts, where the selecting material with the high performance cell result in the high production cost. Usually for the mold and precision of the plastic parts, which are less than the 10 times of the molding, relatively low requirement are made. Therefore, for molds of the simple shape, integral structure can be adopted. इंटीग्रल स्ट्रक्चर आपको, ये इसको इंटीग्रल कैविटी बोलते हैं। ये मोल्ड में आपको कैविटी जो है आपको बनाया जाता है ना। दूसरा है इंटीग्रल एम्बेडेड कैविटी। ये जो है आपको इंटीग्रल एम्बेडेड कैविटी का फिगर दिया हुआ है। इंटीग्रल एम्बेडेड कैविटी, है ना। ये मोल्ड आपको आपको कास्टिंग में आपको यूज होता है। ये कैविटी आपको इंटीग्रल इंटीग्रेटेड कैविटी का फिगर आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इंटीग्रेट मोल्ड कैविटी, use of the high quality material, high carbon steel or allied tool steel, which are slightly larger than the external shape of the plastic part. Wall thickness of the sufficient instability must be ensured to make the cavity parts and embed them into the molding plate thereafter, as indicated in the figure, है ना। The advantage
is that the service life of any cavity parts can be ensured, and meanwhile the material cost is reduced. Furthermore, it is easy to convenient to repair the and replace the cavity parts if the damage. ये आपको इंटीग्रल मोल्डेड कैविटी का आपको एग्जाम्पल आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना। इंटीग्रल मोल्ड कैविटी का आपको डिजाइन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, 4 फिगर दिए हुए हैं इंटीग्रल एम्बेडेड कैविटी का। इंसर्शन एंड स्पेस कैविटी, ये आपको इंसर्शन एंड स्पेस कैविटी का फिगर दिया हुआ है। For cavity which are of the complicated shapes are of the damageable in the certain part, design the parts to hard to be processed or easily damaged into the insert from the embedded them into the basal body of the cavity of the figure 2.9 का आपको दिया हुआ है। Local insertion and the space cavity, इसके बारे में आपको दिया हुआ है ना। For large and complicated cavity mold, the 4 walls of the cavity can be separately processed and inlaid into the mold shelf and finally fitted with the sole plate are indicated in the figure. ये split type cavity का आपको फिगर आपको दिया हुआ है। ये आपको थ्रेडेड रिंग कैविटी का आपको फिगर आपको दिया हुआ है। थ्रेडेड रिंग कैविटी आपको यहाँ पर थ्रेड होता है, ये कैविटी बनाया जाता है। तो threaded ring cavity is a kind of the active insert used to the mold outer thread of the plastic part, which shall be protruded together with the parts after molding and dismounting outside the mold. Figure shows an integral threaded ring cavity whose length of fit to the 5 mm to the 8 mm. To make it easy for the assembly, the remaining parts are the 3 to 5 degree. 3 से 5 डिग्री का यहाँ पर आपको दिखाया गया है। आपको ये आपको obliquity होता है and 4-sided plane is modified at the lower stem so that it will be convenient to screw it from the plastic parts with the tool. To sum up, cavity structure in the more common application are integral embedded cavity and the insertion and the spice cavity. ये आपको कैविटी का थ्रेडेड रिंग कैविटी का आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है। कोर स्ट्रक्चरल डिजाइन, कोर का जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है, ये कोर स्ट्रक्चर आपको बता रहा है, ये आपको कोर बता रहा है। जो आपको कोर से जो कैविटी बनता है तो आपको कोर ये आपको बता रहा है। इंटीग्रल पंच cost too many material and the working load for the cutting and processing amounts too high. Therefore, the hardly any such structure exists in the modern mold structure, which is instead of preoccupied with the integrated embedded punch and inlying modular punch as indicated in the figure 2.6 and the figure 2.7. Inlying modular core है ना, ये इंडलाइन मॉड्यूलर कोर के बारे में आपको यहाँ पर आपको बता रहा है। इनलाइन मॉड्यूलर कोर के बारे में आपको यहाँ पर आपको बता रहा है। डायमेंशन डिजाइन, द वर्किंग डायमेंशन ऑफ द मोल्डिंग पार्ट refer to the dimension in the direct contact with the plastic part in the cavity and core. Its precision directly influences the precision of the plastic parts. Factors relating with the working dimension, the shrinkage of the plastic part, कितना आपको श्रिंकेज होगा उसके बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। Due to the nature of the plastic, the dimension of the plastic part after molding and cooling is smaller than that of the cavity. Manufacturing tolerance, the manufacturing tolerance directly influences the dimension tolerance of the plastic part. 1/3, 1/6 of the tolerance of the plastic part is usually taken as the manufacturing tolerance of the cavity and core, and the surface roughness is this one. Abrasion loss during the use. The abrasion and restoration during the production can lessen the dimensions of the cores and enlarge the dimension of the cavity. Therefore, shrinkage play a more important part in the dimension of the plastic part when the molding large part, where is the main molding small part, the influence of the manufacturing tolerance and abrasion loss is relatively greater. Commonly used shrinkage of the plastic part is usually between the several percent parts of the 1000. ये आपको डायमेंशनल डिजाइन के बारे में आपको यहाँ पर आपको बता रहा है। मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंस कितना होना चाहिए, श्रिंकेज ऑफ द प्लास्टिक पार्ट्स होगा, एब्रेशन ऑफ द लॉस ड्यूरिंग यूज होगा। ये आपको डायमेंशनल डिजाइन में आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। कंप्यूटेशन ऑफ द वर्किंग डायमेंशन, द वर्किंग डायमेंशन ऑफ द कैविटी एंड कोर्स इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू सच 3 factors as the shrinkage of the plastics, the manufacturing of the tolerance cavity and core parts, as well as abrasion loss.
computation of the cavity working dimension are calculated. Cavity are mold parts for forming the external shape of the plastic part. Its working dimension is a kind of the containment dimension which can gradually get larger due to the abrasion of the cavity in use. Hence, to leave some space for the mold repair after abrasion and for the convenience of the fitting and assembly when designing the mold, it might will take the lower limit as the containment dimension and take the upper deviation as the dimension tolerance. है ना? तो ये आपको डायमेंशन टॉलरेंस का कितना फॉर्मूला होगा ये आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है ना? एलपी नॉमिनल डायमेंशन ऑफ द एक्सटर्नल शेप है ऑफ द प्लास्टिक पार्ट, के एवरेज थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक पार्ट है, डायमेंशन टॉलरेंस ऑफ द प्लास्टिक पार्ट है, और डेल्टा मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंस ऑफ द मोल्ड्स है जो आपको 1 से 1/3 से 1/6 इंच के बीच में डायमेंशन आपको लिया जाता है. हेंस द डेप्थ ऑफ द डायमेंशन कैविटी, ये आपको डेप्थ ऑफ द डायमेंशन कैविटी आपको यहाँ पर इस फार्मूला से दिया जाएगा, वेयर एचपी इज द नॉमिनल डायमेंशन इन द अल्टर डायरेक्शन ऑफ द प्लास्टिक पार्ट, है ना? तो लेंथ कैलकुलेट हो गया और डेप्थ कैलकुलेट हो गया. ये आपको लेंथ और डेप्थ कंप्यूटेशन ऑफ द कैविटी वर्किंग डायमेंशन, कैसे आपको रेडियल डायमेंशन कितना होगा ये आपको यहाँ पर कैविटी का आपको लेंथ और डेप्थ आपको कैलकुलेट हो गया, है ना? कंप्यूटेशन ऑफ द कोर वर्किंग डायमेंशन, कोर वर्किंग डायमेंशन का रेडियल डायमेंशन ऑफ द कोर, ये आपको रेडियल डायमेंशन ऑफ द कोर का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है. ये आपको नॉमिनल डायमेंशन ऑफ द डेप्थ डायरेक्शन आपको एच दिया हुआ है, फॉर्मूला फॉर द एल्टीट्यूड डायमेंशन ऑफ द कोर दिया हुआ है, ये कंप्यूटेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द डायमेंशन ऑफ द मोल्ड दिया हुआ है, ये आपको यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा. ये फॉर्मूला आपको कंप्यूटेशन ऑफ द वर्किंग डायमेंशन का आपको दिया हुआ है ना? कंप्यूटेशन ऑफ द थ्रेडेड रिंग कैपेसिटी एंड द थ्रेडेड कोर, ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है. डायमेंशन ऑफ द पिच डायमीटर ऑफ द थ्रेड रिंग कैविटी, डायमेंशन ऑफ द मेजर डायमीटर रिंग कैविटी, डायमेंशन ऑफ द माइनर डायमीटर रिंग कैविटी, नॉमिनल डायमेंशन ऑफ द पिच रिंग कैपेसिटी, ये आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है. तो ये डायमेंशन आपको जो कैविटी का डायमेंशन है, पहले आप उसको समझिए कि ये जो कैविटी इसमें डिजाइन करना है मोल्डिंग पार्ट में, ये आपको इंटरनल कैविटी है. इंटरनल कैविटी का इसमें इसका लेंथ कितना होगा, ये डेप्थ कितना होगा, वही फार्मूला से जो है हम लोग निकाल रहे हैं. उसका लेंथ कितना होगा और उसका डेप्थ कितना होगा इंटीग्रल कैविटी का. उसी तरह एम्बेडेड कैविटी का ये आपको कितना होगा, लेंथ कितना होगा, डेप्थ कितना होगा, ये आपको हर एक तरह का कैविटी का हम लोग जो है आपको डिजाइन करके यहाँ पर आपको डिजाइन में आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है. D2 D1+1 D1 D8-10 D का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है. ये आपको कोर स्ट्रक्चर का ये आपको दिया हुआ है ना? डायमेंशन डिजाइन जो है आपको कैसे करना है ये आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया हुआ है. वर्किंग डायमेंशन ऑफ द मोल्डिंग पार्ट रिफर टू द डायमेंशन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द प्लास्टिक पार्ट इन द कैविटी एंड द कोर, है ना? फैक्टर्स रिलेटिंग टू द वर्किंग डायमेंशन, द श्रिंकेज ऑफ द प्लास्टिक पार्ट, श्रिंकेज होगा प्लास्टिक पार्ट में. मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंस आपको देना है. एब्रेशन लॉस ड्यूरिंग द यूज वो आपको देना है. ये आपको यहाँ इसमें आपको देना है ना? कंप्यूटेशन ऑफ द वर्किंग डायमेंशन, कंप्यूटेशन ऑफ द कैविटी वर्किंग डायमेंशन, ये आपको यहाँ पर आपको क्या क्या आपको निकालना है वो आपको यहाँ पर आपको एल निकल गया, यहाँ पर डेप्थ निकल गया, कितना होगा उसके बारे में आपको कैविटी का मेनली फॉर्मेशन ऑफ द कैविटी है. मोल्ड क्या है? मोल्ड एक कैविटी है जो आपको कास्टिंग के दरमियान आपको यूज होता है, वो आपको कैविटी है. तो कंप्यूटेशन ऑफ द कोर वर्किंग डायमेंशन, ये आपको यहाँ पर आपको एल का रेडियल डायमेंशन निकल गया, आपको एल्टीट्यूड निकल गया और यहाँ पर पोजीशन डायमेंशन निकल गया. ये आपको यहाँ इस फार्मूला से आपको निकल गया है ना? यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है एग्जांपल ऑफ द कंप्यूटेशन का, आपको सारे फार्मूला आपको दिए हुए हैं. रिलेवेंट डायमेंशन ऑफ द कैविटी, रेडियल डायमेंशन कितना होगा, डेप्थ डायमेंशन कितना होगा, रेडियल डायमेंशन कितना होगा, डेप्थ डायमेंशन कितना होगा, कोर डायमीटर कितना होगा, पोजीशन डायमेंशन ऑफ द कोर कितना होगा, ये सारे का फार्मूला आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना? यहाँ पर सारा फार्मूला आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है. दूसरा जो आपको
जो मोल्ड डिजाइन करते हैं, ये मोल्ड का आपको एग्जांपल दिया हुआ है, ये जो है आपको मोल्ड का एग्जांपल है ना, मोल्ड डिजाइन का ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है, जो आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आपको बनाया गया है ना, ये आपको यहाँ पर आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ये आपको बनाया गया है ना, फिक्स्ड हाफ मोल्ड, ये यही आपको मोल्ड है, इसी का डिजाइन के बारे में आपको बात करते हैं, यही आपका मोल्ड है, मूविंग हाफ मोल्ड, ये आपको मोल्ड है, इसी का डिजाइन जो है का बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो बिल ऑफ मटेरियल है, ये आपको बिल ऑफ मटेरियल आपको मोल्ड में, फिक्स्ड मोल्ड में, मूविंग मोल्ड में आपको यहाँ पर दिया हुआ है। बिल ऑफ मटेरियल, फास्टनिंग स्क्रू ऑफ द फिक्स्ड मोल्ड, लोकेटिंग रेस स्क्रू ब्रूस, क्लैंपिंग प्लेट ऑफ द फिक्स्ड हाफ मोल्ड, कैविटी रिटर्नर प्लेट, highlight cell in the cavity insert, fastening screw of the highlight cell of the cavity insert, ये आपको बिल ऑफ मटेरियल का आपको नाम दिया हुआ है, सारे बिल ऑफ मटेरियल फिक्स्ड मोल्ड के लिए और मूविंग मोल्ड के लिए आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। दूसरा, मोल्ड के लिए जो जो पार्ट्स, मोल्ड पार्ट्स जो जो आपको यूज होगा, ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है। Surface roughness of the injection mold with the highlight and the no welding line should be at least the degree A2. The example of the section has not a special requirement for computation of its cavity core dimension, concluding the calculation of its shrinkage rate, which can be completed with the mold CAD/CAM software, है ना, यूजी सॉफ्टवेयर, प्रो इस सॉफ्टवेयर में आपको ये आपको मोल्ड का डिजाइन आपको कैलकुलेट किया गया है। फिट सिस्टम में क्या होगा, स्प्रू होगा, कोल्ड स्लग वेल होगा, रनर होगा, गेट होगा, लोकेटिंग रेन एंड स्प्रू बूस होगा, ये सारे फिट सिस्टम में होगा, है ना। स्प्रू का कितना होगा, द डायमीटर ऑफ इट्स अपर एंड डी इक्वल टू डायमीटर ऑफ द इंजेक्शन मशीन नोजल 0.5 mm, that 3.34 mm takes its inner holes draft at 2 degree, therefore the diameter of its lower end d equal to 6.19 mm and its sphere radius of the injection machine mold 1.15 mm. Sphere radius of the Yahing injection molding machine nozzle is the 12 mm, so R equal to 16 mm, है ना। कोल्ड स्लग वेल है, यूज ए जे जो स्लग कोल्ड वेल टेक इट्स डायमीटर एट 5 mm. रनर है, यूज ए राउंड रनर सिस्टम एंड टेक इट्स डायमीटर एट 5 mm, which is occupied respectively by the fixed half and the moving mold. Gate है, use of an edge gate because of the application of the condition of pairing requirements of the molded part. Take the gate with a 3 mm and the height at the 2 mm. हेलो। हाँ बोलिए सर, ये बड़ी मुश्किल से कनेक्ट हुआ मेरा आधे घंटे में, जरा अटेंडेंस लगा देना मेरी। अभी पता नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही आपको? नहीं, आवाज आ रही है, आपका अटेंडेंस में लगा देता हूँ। आज बच्चे कम आए हैं, कह रहे हैं कि आज एग्जाम है, तो जो जो बच्चे आए हैं मैं आपको अटेंडेंस लगा देता हूँ। आकाश पवार जी 3, आकाश पवार जी 3 प्रेजेंट हैं, रौनक कुमार जी 39 प्रेजेंट हैं, आशीष जी 7 प्रेजेंट हैं, हिमांशु जी 17 प्रेजेंट हैं, हृदय जी 19 प्रेजेंट हैं, ऋषभ नायक जी 54 प्रेजेंट हैं, और राहुल जी 32 प्रेजेंट है। तो मैं अटेंडेंस एक बार फिर बोल देता हूं। राहुल जी 32 प्रेजेंट है, 39 रौनक कुमार जी प्रेजेंट है, आकाश पवार जी 3 प्रेजेंट है, आशीष जी 7 प्रेजेंट है, हिमांशु जी 17 प्रेजेंट है, हृदय जी 19 प्रेजेंट है ना, और ऋषभ नायक जी 54 प्रेजेंट है। ये सारे जो है आज प्रेजेंट हैं, सभी का अटेंडेंस जो है बन गया, है ना। तो ये आपको मोल्ड डिजाइन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। मोल्ड डिजाइन में आपको यही होता है, एक तो फीड सिस्टम होता है, उसमें
स्प्रू का डिजाइन करना होता है तो यहाँ पर स्प्रू के लिए आपको बताया हुआ है। कोल्ड स्लग वेल के बारे में आपको बताया हुआ है। रनर के बारे में आपको बताया हुआ है। कास्टिंग में आप पढ़े होंगे, गेट पढ़े होंगे, रनर पढ़े होंगे, लोकेटिंग पिन पढ़े होंगे, स्प्रू बुश पढ़े होंगे। ये सारे जो है उसी का डिजाइन के बारे में आपको यहाँ पर आपको बताया गया है ना। Locating pin and screw bush according to the center hole dimension of the fixed hole melt plate of the injection machine. The inner dimension of the location ring is 30 centimeter and diameter of the screw bush is 16 mm. Ejector mechanism में आपको यहाँ पर इजेक्टर पिन के बारे में बताया गया है, रिटर्न मैकेनिज्म के बारे में बताया गया है, गाइड मैकेनिज्म के बारे में बताया गया है, स्प्रू पुलर पिन के बारे में बताया गया है, इजेक्शन स्ट्रोक के बारे में बताया गया है ना। Ejector pin, 6 ejector pins are disposed on the allowance location of the core and the diameter is the 5 mm. Return mechanism, after the plastic part is ejected by the ejector pin, the ejector pin should return to the initial position for the next cycle. 4 return pins are used and the diameter is the 15 mm. Guide mechanism, the guide mechanism is done by the 4 guide pins and the guide bushes of the diameter is the 20 mm. Screw puller pin, use a Z-type screw puller pin and its work in diameter is the 5 mm. Ejector stroke, the height of the plastic part is the 10.52 mm. The ejector stroke should not be less than 15 mm for the plastic part ejecting from the moving half mold. है ना? Yesing injection machine distance is the 74 mm which meets the requirement. है ना? The side core pulling mechanism. कोर पुलिंग डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ग्रेडियंट दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द एंगल पिन दिया हुआ है, मिनिमम ओपनिंग स्ट्रोक एंड लेंथ एंगल, ये सारा आपको यहाँ पर निकाला हुआ है, स्लाइड्स निकाला हुआ है ना। तो आपको स्लाइड कोर मैकेनिज्म में कोर पुलिंग डिस्टेंस, जनरली कोर पुलिंग डिस्टेंस इज लॉन्गर देन द साइड होल और द साइड डेंट एंड डेप्थ बाय द 2.3 mm. हियर S equal to 3.5 mm. Gradient A of the angle pin. Usually the range of the angle pin is 15 to 20 degree, not over 25 degree. The core pulling distance is the short. So take the gradient of the angle pin is the 16 degree. Diameter of the angle pin. Take its work and diameter at 12 mm because the pull out force and the gradient is low. Minimum opening stroke and the work length of the angle pin. The minimum opening stroke for the side core pulling, ये आपको H equal to 3.5 mm दिया हुआ है. The effective work length of the angle pin, ये LS by cos alpha, ये आपको 3.7 mm दिया हुआ है. Slides, the slide assembly structure has a T-type guide slots in order to ensure the angle pins are exactly inserted into the slide holes when the mold is closed again. After the side core pulling is done, the wedge plates are used for the slide location in the mold structure. And air vent, because this part is small, just one cavity, the gap between the parting line and the ejector pin is the enough to the vent. There is no need to set special air vents. Air vent का आपको कोई जरूरत नहीं है. Temperature control, use 3 rectangle conformal channels which is the 10 mm and depth is the 5 mm as shown in the figure. The middle conformal channel divides into the 2 branches when it meets the direct gate and they join together in the other side. The mold cavity surface temperature is the 95 degree. है ना? Checking of the injection machine parameter. Checking of the maximum injection volume आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है. Maximum injection volume का formula आपको दिया हुआ है. The maximum injection volume of the machine यहाँ पर आपको दिया हुआ है. Vp the volume of the plastic दिया हुआ है. Vg the volume of the feed system दिया हुआ है ना? The rated injection volume आपको ये आपको होगा meets the requirement. Checking of the locking force जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है. PM the pressure of the melt plastic in the mold cavity ये आपको दिया हुआ है. ये जो है the projection area of the plastic part ये आपको दिया हुआ है. F1 the rated locking force of the injection machine ये आपको दिया हुआ है ना. A equal to L equal to W ये निकल जाएगा. FL निकल जाएगा. लॉकिंग फोर्स निकल जाएगा. PM into A ये आपको इतना टन होगा ये आपको निकल जाएगा है ना. द रेटेड लॉकिंग फोर्स ऑफ द यहिंग ये आपको इतना टन होगा ये आपको निकल जाएगा है ना. चेकिंग ऑफ द असेंबली डायमेंशन, द मोल्ड सेट हाइट, लेंथ एंड विड्थ
should match the mold plate dimension of the injection machine and the road space. The length and width of the mold is the 300 into the 250, है ना? So it meets the requirement. Checking of the mold set height, the maximum and minimum space between the mold plates of the Yahing 100 injection machine is respectively 305 mm and 102 mm, है ना? Actual mold thickness HM 261 mm, ये आपको इतना होगा. Checking of the opening stake, the maximum opening stake of the Yahing injection machine is this one. The stroke of the moving mold plate should be greater 2 times than the height of the plastic port of the ejecting. ये आपको इतना होगा. ये आपको सारा आपको कैलकुलेशन निकाला हुआ है. ये फिक्स्ड हाफ मोल्ड है ना? उसी का डिजाइन जो है आपको यहाँ पर बताया गया है. फिक्स्ड हाफ मोल्ड फिगर में आपको दिखाया गया है. बिल ऑफ मटेरियल आपको टेबल में आपको बताया गया है ना? ये आपको मूविंग मोल्ड है, मूविंग मोल्ड है, मूविंग हाफ मोल्ड है. बिल ऑफ मटेरियल आपको यहाँ पर आपको बताया गया है. आप बिल ऑफ मटेरियल को यहाँ पर एक बार ध्यान से आप देखिए. फिक्स्ड मोल्ड के लिए दिया हुआ है, मूविंग मोल्ड के लिए दिया हुआ है. फिक्स्ड मोल्ड के लिए सीक्वेंस नंबर 16 तक का दिया हुआ है, क्या क्या लगेगा, और मूविंग मोल्ड के लिए आपको 28 तक दिया हुआ है. फिक्स्ड मोल्ड के लिए फास्टनिंग स्क्रू ऑफ द फिक्स्ड मोल्ड 4 लगेगा, लोकेटिंग पिन 1 लगेगा, स्क्रू बुश 1 लगेगा, क्लैंपिंग प्लेट ऑफ द फिक्स्ड हाफ मोल्ड 1 लगेगा, कैविटी रिटर्नर प्लेट 1 लगेगा, हाईलाइट सेल इन द कैविटी इंसर्ट 1 लगेगा, फास्टनिंग स्क्रू ऑफ द हाईलाइट सेल ऑन कैविटी इंसर्ट 1 लगेगा, इनर पैकिंग रिंग बिटवीन द हाईलाइट सेल एंड द कैविटी इंसर्ट 1 लगेगा, आउटर पैकिंग रिंग बिटवीन द हाईलाइट सेल एंड द कैविटी इंसर्ट 1 लगेगा, है ना? बैकग्राउंड प्लेट इन द कैविटी इंसर्ट 4 लगेगा, फास्टनिंग ब्लॉक ऑफ द कैविटी इंसर्ट ये भी आपको 4 लगेगा, फास्टनिंग स्क्रू ऑफ द फास्टनिंग ब्लॉक ये भी आपको 4 लगेगा, गाइड बुश आपको 2 लगेगा, वेज प्लेट फॉर द स्लाइड्स 8 लगेगा, फास्टनिंग स्क्रू फॉर द वेज प्लेट, है ना, ये आपको 8 लगेगा, एंगल पिंस आपको 2 लगेगा. फिक्स्ड मोल्ड के लिए आपको यहाँ पर क्या क्या पार्ट्स हैं, कितने लगेंगे, वो सारे यहां पर आपको बिल ऑफ मटेरियल में आपको बताया हुआ है ना? मूविंग मोल्ड के लिए बिल ऑफ मटेरियल आपको यहां पर बताया हुआ है. क्लैंपिंग प्लेट ऑफ द मूविंग हाफ मोल्ड 1 लगेगा, फास्टनिंग स्क्रू ऑफ द क्लैंपिंग प्लेट ये आपको 4 लगेगा, फास्टनिंग स्क्रू ऑफ द कोर रिटर्नर प्लेट 5 लगेगा, कोर रिटर्नर प्लेट 1 लगेगा, कोर इंसर्ट आपको 1 लगेगा, फास्टनिंग ब्लॉक ऑफ द कोर इंसर्ट 4 लगेगा, फास्टनिंग स्क्रू ऑफ द फास्टनिंग ब्लॉक्स 4 लगेगा, स्लाइड्स जो है आपको 2 लगेगा, स्लाइड इंसर्ट्स 2 लगेगा, फास्टनिंग स्क्रू ऑफ द स्लाइड इंसर्ट 4 लगेगा, गाइड रेल्स ऑन द स्लाइड्स 4 लगेगा, फास्टनिंग स्क्रू ऑफ द गाइड रेल्स 8 लगेगा, गाइड प्लेट्स 2 लगेगा, फास्टनिंग स्क्रू ऑफ द गाइड प्लेट्स ये आपको 4 लगेगा, स्पेसर ब्लॉक 1 लगेगा, स्पेसर ब्लॉक विथ स्लॉट 1 लगेगा, इजेक्टर रिटेनर प्लेट आपको 1 लगेगा, है ना? ये आपको इजेक्टर रिटर्नर प्लेट के बारे में आपको यहां पर बताया हुआ है. इजेक्टर सपोर्ट प्लॉट 1 लगेगा, फास्टनिंग स्क्रू ऑफ द इजेक्टर रिटर्नर प्लेट, इजेक्टर पिंस आपको 4 लगेगा, गाइड पिंस 4 लगेगा, रिटर्न पिंस 4 लगेगा, स्टॉप पिंस 2 लगेगा, इजेक्टर रिटर्नर रॉड्स 6 लगेगा, फास्टनिंग ब्लॉक ऑफ द इजेक्टर रिटर्नर रॉड 1 लगेगा, फास्टनिंग स्क्रू ये आपको 2 लगेगा, सपोर्ट प्लेट ऑफ द इंजेक्टर रिटर्नर प्लॉट्स ये आपको लगेगा, फास्टनिंग स्क्रू ऑफ द सपोर्ट प्लेट ये आपको 2 लगेगा, है ना? तो ये आपको बिल ऑफ मटेरियल आपको ये आपको मोल्ड का जो फिगर है यही फिगर है, जो हाफ मोल्ड मूविंग हाफ मोल्ड का यही फिगर है. ये आपको एक एक पार्ट जो है आपको यहाँ पर आपको बताया हुआ है और उसका जो है आपको बिल ऑफ मटेरियल आपको निकाला हुआ है. डिजाइन में आपको यही करना है ना? एक एक सभी का नंबरिंग किया हुआ है ना? सभी का नंबरिंग किया हुआ है, सारे पार्ट्स का नंबरिंग किया हुआ है. ये मूविंग मोल्ड के लिए है, इसका नंबरिंग किया हुआ है, सभी पार्ट्स का आपको नंबरिंग किया गया है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये आपको नंबरिंग किया गया है. और नीचे आपको बिल ऑफ मटेरियल मैंने आपको दिखाया है ना, ये मूविंग मोल्ड के लिए था और ये आपको फिक्स्ड मोल्ड के लिए है.
फिक्स्ड हाफ मोल्ड के लिए है, सारा नंबरिंग आपको किया हुआ है, 1 2 कौन पार्ट्स है ये सारे आपको यहाँ पर आपको नंबरिंग किया हुआ है। फिक्स्ड हाफ मोल्ड 14 15 16 है ना, 6 8 9 10 11 12 13 ये सारे आपको 14 15 16 यही आपको मोल्ड है, फिक्स्ड हाफ मोल्ड है ना। इसका कैलकुलेशन निकाला गया है और इसको आपको बिल ऑफ मटेरियल मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है ना, ये आपको बिल ऑफ मटेरियल है, ये नंबरिंग किया गया है फिक्स्ड मोल्ड के लिए और मूविंग मोल्ड के लिए। ये बिल ऑफ मटेरियल आपको लिखा हुआ है कितने लगेंगे, है ना। फिक्स्ड मोल्ड के लिए आपको यहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल दिखा गया है, मूविंग मोल्ड के लिए आपको बिल ऑफ मटेरियल आपको लिखा गया है यहाँ पर, है ना। तो इसको समझिए, मूविंग मोल्ड का ये नंबरिंग किया गया है, मूविंग मोल्ड का ये पार्ट्स होगा, है ना। मोल्ड बनाया गया है, ये मोल्ड का आपको एग्जांपल है, मोल्ड बनाया गया है, मोल्ड का ये एग्जांपल है, मोल्ड बनाया गया है ना। सबको नंबर किया गया है, पार्ट्स को नंबरिंग किया गया है और बिल ऑफ मटेरियल नीचे दिया गया है। ये मूविंग हाफ मोल्ड है, उसका बिल ऑफ मटेरियल आपको नीचे दिया गया है। ये आपको फिक्स्ड हाफ मोल्ड है जिसका बिल ऑफ मटेरियल आपको नीचे दिया गया है, टेबल में आपको दिया गया है, सभी पार्ट्स को नंबर किया गया है ना। मोल्ड डिजाइन में यही करेंगे, मोल्ड डिजाइन में यही करेंगे और ये सारे पार्ट्स को है ना इंजेक्शन मोल्ड में डिजाइन करके सारे पार्ट्स का डायमेंशन निकाला गया है, फिट सिस्टम का निकाला गया है, स्प्रू का निकाला गया है, कोल्ड स्लग व्हील का निकाला गया है ना, डायमीटर 5 mm होगा, स्प्रू का निकाला गया है, उसका रेडियस इतना होगा, स्फेयर रेडियस इतना होगा, ड्राफ्ट 2 डिग्री होगा, रनर फीड सिस्टम में, कास्टिंग में जो फीड सिस्टम होता है, रनर डायमीटर उसका 5 mm होगा, which is occupied respectively by the fixed half and moving half mold. गेट का विड्थ जो है 3 mm एंड द हाइट 2 mm होगा, है ना। लोकेटिंग रिंग एंड द स्क्रू बूस, कास्टिंग में ये सारे वर्ड आपको यूज किए गए हैं, फीड सिस्टम, फीड मैकेनिज्म, कास्टिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मोल्ड में मोल्ड डिजाइन, कास्टिंग का जो मोल्ड डिजाइन है उसमें आप लोगों ने इसमें आपने पढ़ा होगा, स्क्रू के बारे में पढ़ा होगा, कोल्ड स्लग व्हील के बारे में पढ़ा होगा, रनर के बारे में पढ़ा होगा, गेट के बारे में पढ़ा होगा, लोकेटिंग पिन, स्क्रू बूस के बारे में पढ़ा होगा। तो उसी के बारे में आपको डिजाइन करने का बताया गया है। इजेक्टर मैकेनिज्म में इजेक्टर पिन लगेगा, 6 इजेक्टर पिन आर डिस्पोज, रिटर्न मैकेनिज्म होगा, गाइड मैकेनिज्म होगा, स्क्रू पुलर पिन होगा, इजेक्शन स्ट्रोक होगा, है ना, इजेक्शन स्ट्रोक होगा, स्क्रू पुलर पिन होगा, गाइड मैकेनिज्म होगा, रिटर्न मैकेनिज्म होगा, इजेक्टर पिन्स होगा, है ना। साइड कोर पुलिंग मैकेनिज्म में कोर पुलिंग डिस्टेंस होगा, ग्रेडियंट ए ऑफ द एंगल पिन होगा, डायमीटर ऑफ द एंगल पिन होगा, मिनिमम ओपनिंग स्ट्रोक एंड वर्क लेंथ ऑफ द एंगल पिन होगा, है ना। स्लाइड्स होगा, एयर वेंट होगा, टेम्परेचर कंट्रोल होगा। टेम्परेचर कंट्रोल कैसे टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, यूज 3 रेक्टेंगल का फॉर्मूला। अटेंडेंस आपका रह गया है, क्या नाम है आपका? 41 सर। 41? यस सर। क्या नाम बताए आप जो है? शेखर। हाँ, शेखर जी का अटेंडेंस हो गया, 41 शेखर जी का अटेंडेंस हो, है ना। तो मोल्ड का जो डिजाइन करेंगे उसी के सारे कैलकुलेशन
और सारे कैलकुलेशन किए हुए हैं डिजाइन का, मोल्ड डिजाइन का। चेकिंग ऑफ द लॉकिंग फोर्स को यहां पर चेक किया गया है, लॉकिंग फोर्स निकाला गया है 11.6 टन, है ना। द रेट लॉकिंग फोर्स ऑफ द 11.6 टन। चेकिंग ऑफ द असेंबली डायमेंशन वो किया गया है। चेकिंग ऑफ द मोल्ड सेट हाइट कितना होगा, मोल्ड सेट हाइट इसके बारे में बताया गया है। चेकिंग ऑफ ए ओपन स्ट्रोक कितना होगा, द मैक्सिमम ओपन स्ट्रोक injection machine is the 2.9 mm. The stroke of the moving mold plate should be greater than 2 times than the height of the plastic part of the ejecting. So the stroke of the injection machine is relative to the mold thickness. The opening stroke of the injection machine should meet the following formula. Checking of the opening stroke ये होगा 131, है ना। और ये मोल्ड आपको बताया गया, फिगर में आपको दिखाया जा रहा है। ये मोल्ड आपको फिगर में दिखाया जा रहा है, सबका डायमेंशन कैलकुलेट किया गया है और बिल ऑफ मटेरियल क्या क्या लगा हुआ है मोल्ड का, है ना। एक एक चीज, एक एक नंबर आपको बताया गया है मोल्ड का। फिक्स्ड हाफ मोल्ड है, दूसरा मूविंग हाफ मोल्ड है, मूविंग हाफ मोल्ड। और ये रहा बिल ऑफ मटेरियल, कौन कौन सा मटेरियल इसमें आपको लगा हुआ है फिक्स्ड मोल्ड में और मूविंग मोल्ड में, ये आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। फिक्स्ड मोल्ड में फास्टनिंग स्क्रू ऑफ द फिक्स्ड मोल्ड 4 लगेंगे, लोकेटिंग रिंग 1 लगेंगे, स्क्रू बुश 1 लगेंगे, क्लैंपिंग प्लेट ऑफ द फिक्स्ड हाफ मोल्ड 1 लगेंगे, कैविटी रिटेनर प्लेट 1 लगेंगे, हाईलाइट सेल इन कैविटी इंसर्ट 1 लगेंगे, फास्टनिंग स्क्रू ऑफ द हाईलाइट सेल ऑन द कैविटी इंसर्ट 4 लगेंगे, है ना। इनर पैकिंग रिंग बिटवीन द हाईलाइट सेल एंड द कैविटी इंसर्ट 1 लगेंगे, आउटर पैकिंग रिंग बिटवीन द हाईलाइट सेल एंड द कैविटी इंसर्ट 1 लगेंगे, बैकग्राउंड प्लेट इन द कैविटी इंसर्ट 1 लगेंगे, फास्टनिंग ब्लॉक ऑफ द कैविटी इंसर्ट 4 लगेगा, फास्टनिंग स्क्रू ऑफ द फास्टनिंग ब्लॉक 4 लगेगा, गाइड बुशेस 4 लगेगा, वेज प्लेट फॉर द स्लाइड्स 2 लगेगा, फास्टनिंग स्क्रू फॉर द वेज प्लेट्स 8 लगेगा, एंगल पिंस आपको 2 लगेगा, है ना। ये आपको बिल ऑफ मटेरियल ये आपको दिखाया गया है। मूविंग मोल्ड के लिए बिल ऑफ मटेरियल आपको ये दिखाया गया है। क्लैंपिंग प्लेट ऑफ द मूविंग हाफ मोल्ड ये 1 लगेगा, फास्टनिंग स्क्रू ऑफ द कैंपलिंग प्लेट 4 लगेगा, फास्टनिंग स्क्रू ऑफ द कोर रिटेनर प्लेट 5 लगेगा, कोर रिटेनर प्लेट 1 लगेगा, कोर इंसर्ट 1 लगेगा, फास्टनिंग ब्लॉक्स ऑफ द कोर इंसर्ट 4 लगेगा, फास्टनिंग स्क्रू ऑफ द फास्टनिंग ब्लॉक्स 4 लगेगा, स्लाइड्स आपको 2 लगेगा, स्लाइड इंसर्ट 2 लगेगा, फास्टनिंग स्क्रू ऑफ द स्लाइड इंसर्ट 4 लगेगा, गाइड रेल्स ऑन द स्लाइड्स 4 लगेगा, है ना। फास्टनिंग स्क्रू ऑफ द गाइड रेल्स 8 लगेगा, गाइड प्लेट्स 2 लगेगा, फास्टनिंग स्क्रू ऑफ द गाइड प्लेट्स 4 लगेगा, स्पेसर ब्लॉक 1 लगेगा, स्पेसर ब्लॉक विथ स्लॉट 1 लगेगा, इजेक्टर रिटेनर प्लेट 1 लगेगा, इजेक्टर सपोर्ट प्लेट 1 लगेगा, फास्टनिंग स्क्रू ऑफ द इजेक्टर रिटेनर प्लेट 4 लगेगा, इजेक्टर पिंस आपको 6 लगेगा, गाइड पिंस 4 लगेगा, रिटर्न पिंस 4 लगेगा, स्टॉप पिंस 2 लगेगा, है ना। इजेक्टर रिटेनर रॉड्स 6 लगेगा, फास्टनिंग ब्लॉक ऑफ द इजेक्टर रिटेनर रॉड्स 1 लगेगा, फास्टनिंग स्क्रू ऑफ द फास्टनिंग ब्लॉक ऑफ द इजेक्टर रिटेनर रॉड 2 लगेगा, सपोर्ट प्लेट ऑफ द इजेक्टर रिटेनर रॉड 1 लगेगा, फास्टनिंग स्क्रू ऑफ द सपोर्ट प्लेट ऑफ द इजेक्टर रिटेनर रॉड 2 लगेगा। ये आपको बिल ऑफ मटेरियल आपको दिखाया गया है ना। तो मोल्ड का डिजाइन, ये आपको मोल्ड का डिजाइन आपको बनाया हुआ है, सारे नंबर आपको दिए हुए हैं, नंबरिंग किया हुआ है। मोल्ड डिजाइन आपको ये आपको नंबर किया हुआ है, ये आपको नंबर किया हुआ है सारा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, है ना, 27, 28, 24, 25, 26, ये सारा मूविंग हाफ मोल्ड के लिए ये आपको नंबर किया हुआ है ना। तो
आपको मोल्ड डिजाइन में आपको यही करना है, सारे पार्ट्स के डायमेंशन निकालना है और मोल्ड का फिगर बनाना है और मोल्ड का बिल ऑफ मटेरियल बनाना है, यही करना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 11 12 13 14 है ना। फिक्स्ड मोल्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बिल ऑफ मटेरियल मैंने आपको अभी पार्ट्स का नाम मैंने आपको अभी दिखाया था, पार्ट्स के नाम आपको दिखाया था, है ना। तो मोल्ड डिजाइन में यही डिजाइन करते हैं, बिल ऑफ मटेरियल बनाएंगे, कौन कौन से पार्ट लगे हुए हैं उसका कैलकुलेशन मैंने फिर से मैंने आपको क्लियर कर देता हूं। एक तो फिट सिस्टम हो गया। फिट सिस्टम में आपको स्प्रू होगा, स्प्रू का रेडियस कितना होगा वो यहां पे कैलकुलेट किया गया है। कोल्ड स्लग वेल आपको डायमीटर 5 mm का होगा, रनर डायमीटर 5 mm का होगा, गेट आपको विड्थ 3 mm का और हाइट 2 mm का होगा। लोकेटिंग रिंग एंड स्प्रू बोस ये आपको होगा। दूसरा इजेक्टर मैकेनिज्म, इजेक्टर पिन होगा, उसमें रिटर्न मैकेनिज्म होगा, गाइड मैकेनिज्म होगा, स्प्रू पुलर पिन होगा, इंजेक्शन स्ट्रोक होगा। इंजेक्शन स्ट्रोक में द हाइट ऑफ द प्लास्टिक पार्ट आपको इतना होगा। गाइड मैकेनिज्म में 4 गाइड पिन एंड गाइड बुश ऑफ डायमीटर इतना होगा। रिटर्न मैकेनिज्म में डायमीटर इतना होगा। इजेक्टर पिन में डायमीटर इतना होगा।